Am I the Michael Phelps of youth festivals? I don't know, but I surely am a winner. Sorry for being annoying. I am Kavya Singh. I am national level speaker, debater, orator, anchor, and I'm here on this channel talking about my experience as a public speaker, as a competitive debater, and as someone who has been able to speak in front of the Honorable Prime Minister, the Vice President, the different Chief Ministers of different states, along with other eminent dignitaries, alongside being invited as a youth icon in Rashtrapati Bhavan this year by none other than the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji. So in this video, I am telling you about how I got started with my public speaking journey, something that I covered in my last video. That was my first video on YouTube. And in that, I told you about the very initial stages of how I got started. In this video, I will be continuing that story up until how I actually got to speak in front of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and how I got to have lunch with him on the very same day, right after my speech. So if you want to know how I did that, stay tuned and keep watching this video. So yeah, like I showed you, this actually signifies my college life, and this is something I've been crazy about much more than anything else. And in the last video, I actually told you about my first win on the national level, of how I won my first debate competition, and I actually have the memento right here with me. So Kavya Singh first prize debate, and this is very instrumental, not just because I won cash prize for the first time, not just because I earned money for the first time, but also because I never saw myself as a debater. जब आप debaters को देखते हो तो आपको लगता है they are something else. They are different people. They are a different breed altogether. Like if you see some fiery speech of the parliament, where the parliamentarians are like debating on something, you feel a little scared. At least I did, और मैं जिस माहौल से आती हूँ, तो मैं स्कूलिंग मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल बैंगलोर से की है, और वहाँ पे माहौल ऐसा था कि सारे बच्चे कुछ ना कुछ को करिकुलर एक्टिविटी कर रहे होते थे, एंड उनके पेरेंट्स से वो कहीं ना कहीं गाइडेंस आती थी कि आपको को करिकुलर्स में जाना है, आपको आउटस्पोकन बनना है. सो आई थिंक that was the reason why these kids were so fierce and they were so confident and outspoken, and to some extent they were very aggressive. तो उनका वो confidence देख के ना मुझे डर लगता था. Like I remember there were some girls who were in Model United Nations or Model Parliament. Some of them were like modeling during that time. Some of them were like big influencers, and they just had this surety about themselves. Like they just knew what they were doing, and I always wanted to have that. Like I never had this innate belief in myself कि मुझे जो मैं चाहूँ मैं कर सकती हूँ. मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी कि हाँ मुझे ये करना है, ठीक है. I used to be someone who was very submissive, and that is the reason why I lost a lot of things that were very dear to me. I did not get to have the career that I wanted to, just because I could not even speak up for myself. I was so scared of like offending people that I could not even save my career. So that hit me. I was like, Kavya, you can't let people keep doing this to you. You have to start speaking up for yourself. Because of need, because of not getting the career that I wanted, it was kind of a shock to me कि मुझे ना कहीं स्टटरिंग की प्रॉब्लम हो गई थी. मतलब मैं आज भी अगर मैं नर्वस होती हूँ ना, तो मैं स्टटर करती हूँ, मैं अटकती हूँ, और उसकी वजह से मुझे किसी के सामने बात करने में ना हेजिटेशन होने लग गई थी. एंड दैट वॉज ऑल्सो अ रीज़न वाई आई गॉट इन टू पब्लिक स्पीकिंग. मतलब इसीलिए मैंने ऑडिशंस भी दिए थे यूथ फेस्टिवल के, क्योंकि मैं चाहती थी यार मेरे जो भी फियर्स है ना, आई वॉन्टेड टू ओवरकम दैट. सो आई थिंक स्पीकिंग ऑन स्टेज, और लाइक I want to be like these confident girls, but I somewhere or the other feel in my mind that I can't be. So that is my next fear. That is the next thing I have to tackle. So I started getting into all this. So I think that is why, that is what drove me into winning all these competitions. That is what kept giving me all this confidence. और जब मैं हारती थी तो मैं उसको बहुत ही एक पॉजिटिव टोन में लेने की कोशिश करती थी कि
तुम हर समय जीत नहीं सकते हो, ठीक है, पर तुम हर समय हार के खुश भी नहीं रह सकते हो. यू हैव टू एस्पायर टू विन, but you have to also accept your losses and learn from them. So that is what I learned. Proof that I won my first national level debate, first prize of the debate competition. And subsequently I participated in a lot of different small, big, all sorts of competitions. So I won an MUN that I was doing, district level competition, block level. Like, you participate in MUNs, Model United Nations, Model Parliaments. So I participated in something called Prajatantra, which was basically Model Urban Local Body. And in that also I won, a gold medal in the debate, won the overall championship. I won the overall best team. So this is not the team championship. That is, of course, in my university. Don't worry about it. This is just a replica that I made with my own money, so just to keep, with myself and feel happy about it. As I, kept winning, I always wanted to aim for AIU UniFest. So Association of Indian Universities organizes something called UniFest. तो ये जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है, ये बहुत से कॉम्पिटिशन्स कराती है, जैसे कवाली कॉम्पिटिशन है, फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स है, विमेंस पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज कराती है. ऐसे ही ये कराती है ऑर्गेनाइज यूनिफेस्ट, जिसमें जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. एंड हमारी यूनिवर्सिटी भी बहुत एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करती थी. इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि जब ये शुरू हुआ था बैक इन द लेट 80s, तब हमारी जो वाइस चांसलर अभी की हैं वो उस समय बनस्थली की स्टूडेंट थी, और फर्स्ट बैच जो यूनिफेस्ट में बनस्थली को रिप्रेजेंट करने गया था उसमें हमारी वाइस चांसलर भी पार्टिसिपेंट थी. तो उसलिए वो लेगेसी अभी तक कंटिन्यू हो रही है, और उनके लीडरशिप में एक्चुअली हम जैसे जो यंग बडिंग टैलेंट है वो आगे बढ़ पाता है. तो डेफिनेटली लीडरशिप का जब सपोर्ट होता है ना, तो आप बहुत आगे बढ़ पाते हो, और उसी का रीज़न है कि हम लोग बहुत से बच्चे हैं जो इतना सब कुछ कर पाए. देयर वाज अ सीनियर ऑफ आवर्स जो म्यूज़िक में, सिंगिंग में बहुत अच्छा करती थी, और उनको यूनिफेस्ट का प्लेटफॉर्म मिला, और उसके बाद अभी रिसेंटली उन्होंने संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी है उसमें एक गाना गाया था, वंडरफुल, दैट अ बनस्थलीite नॉट वेरी ओल्डर देन अस हैज़ गॉटन टू दैट लेवल. तो इससे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है कि जो इस प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं वो क्या क्या अचीव कर रहे हैं. एंड कपिल शर्मा इज़ वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस UniFest. A lot of other prominent theatre artists, music artists, all have come from UniFest. So it's a big platform. It's a very prestigious one. तो मुझे भी ये था कि यार ठीक है, मैं ये सब कॉम्पिटिशन्स कर रही हूँ, आर्बिट्री वंस, बट माई मेन गोल इज़ ऑलवेज यूनिफेस्ट. और बनस्थली में कॉम्पिटिटिव माहौल भी यूनिफेस्ट को लेके ही था कि हम सबको उसमें जाना है, और टीचर्स भी आपसे वही एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है आप नेशनल लेवल पे बोल रहे हो, बट कि आपने यूनिफेस्ट किया है, ठीक है. तो जिसने यूनिफेस्ट किया होता था उसको लोग बहुत सम्मान, इज्जत, प्यार देते थे. तो मुझे भी था कि मुझे भी करना है. तो मैंने फर्स्ट ईयर में, जैसे आपको बताया था, ऑडिशन दिया, पर मैं सेलेक्ट नहीं हुई थी यूथ फेस्ट के लिए. तो नेक्स्ट ईयर क्योंकि मैं बहुत से फिर कॉम्पिटिशन्स जीती, मैंने अपना इम्प्रूव किया पब्लिक स्पीकिंग, मैंने अपनी कला को निखारा. उसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं बनस्थली को रिप्रेजेंट कर सकूं यूनिफेस्ट में. और उस साल हम लोग गए तो जोनल्स में हमारा क्विज़, क्योंकि मैं क्विज़ और डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी, तो हम क्विज़ में सेकंड आए थे. By just a margin of 5 marks, we lost the first prize in quiz to Jamia Millia Islamia University, जो हमारा सबसे टॉप का राइवल होता था. And I won gold in debate, and we lifted the literary championship trophy. और उसके बाद नेशनल्स में हम लोग जाते हैं तो फिर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तैयारी होती है. नेशनल्स इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. तो अच्छा, आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइज, तो यूनिफेस्ट में 5 कैटेगरीज में कंपटीशन होता है. सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अ स्पीकिंग कंपटीशन, इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल दी टाइप्स ऑफ आर्ट्स, ऑल द टाइप ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज एक्सेप्ट फॉर स्पोर्ट्स. सो इट्स लाइक डांस, म्यूजिक, थिएटर, फाइन आर्ट्स एंड लिटरेरी. तो हम पहले ऐसे कॉम्पिटिशन में जा रहे थे, एक्सेप्ट फॉर गवर्नमेंट के जो यूथ फेस्टिवल होता है वो, जिसमें
मुझे बहुत सी और भी कलाओं को देखने का मौका मिल रहा था। तो मैं देखती थी राजस्थान में, तो स्पेशली जो राजस्थानी फोक डांस है, और बनस्थली में इट्स वेरी वंडरफुली डन, इट्स वेरी वंडरफुली प्रिजर्व्ड। तो वो एक बहुत अच्छा मुझे पहली बार देखने को मिला कि कैसे अपनी संस्कृति को हम बचा के रखते हैं। फिर राजस्थानी फोक डांस है, म्यूज़िक है, वोकल्स हैं, और वेस्टर्न वोकल्स भी उतने अच्छे हो रहे हैं, वेस्टर्न सॉन्ग्स भी उतने अच्छे से गाए जा रहे हैं। जो फाइन आर्ट्स होता था उसमें हमारे ट्रेडिशनल मांडना आर्ट है, वैसी बहुत सी चीज़ें दिखाई जा रही थी। फिर जब हम नेशनल्स में जाते थे, हम देखते थे कि कितने डिफरेंट टाइप्स के डांसेस हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के म्यूज़िक्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्चुअली स्पीकिंग स्किल्स भी। क्योंकि ठीक है, आप इंग्लिश में ही बोलेंगे या हिंदी में ही बोलेंगे, जो आपकी दो लैंग्वेजेस उसमें अलाउड होती है, तो इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, आप उसमें ही बोलोगे। लेकिन आप जो एग्जाम्पल्स देते हो वो कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के लोगों को डिफरेंट आइडियाज आ रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, वो देखने को मिलता था। सो इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एट a single place. So that is why I think Unifest really opened up my mind to a lot of opportunities. तो मैं पहली साल गई तो मैं जोनल्स में तो ऑब्वियसली जीती, बट न्यूबीज के साथ ये प्रॉब्लम होती है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा नहीं जीते होते हो, तो आप जब जीतते हो ना तो आप उसके बाद खुश हो जाते हो, आप कंप्लेसेंट हो जाते हो कि अच्छा हम जीत गए, ख़त्म है बस। तो हम जोनल के बाद ना खुश हो गए कि अच्छा हो गया। तो नेशनल्स में गए, हमें पता ही नहीं था कंपटीशन का लेवल। तो जोनल में आपको सिर्फ 5 मिनट बोलना होता है, नेशनल में आपको 10 मिनट बोलना होता है। नेशनल में जो है लोग स्लेजिंग भी करते हैं, नेशनल में जो है आपके कंपेटिटर्स फियर्स भी होते हैं, क्योंकि वो अपनी लेगेसी को मेंटेन कर रहे हैं, आपको जाना है अपनी लेगेसी को मेंटेन करने। तो हम पहली बार जा रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि अच्छा नेशनल्स इतना इंटेंस होता है। तो वहाँ पे हम गए, हमने देखा कंपटीशन। यूजुअली जो टॉपिक होता था नेशनल्स का वो 48 आवर्स पहले मिलता था। तो हमें ये झटका लगा नेशनल्स जाके उस साल कि टॉपिक मिल गया 24 घंटे पहले, और उसमें हमारी टीम का कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा नहीं बना ड्यू टू वट एवर सर्कमस्टांसिस कि हम फॉल्टर कर गए बहुत जगह पे। तो फिर जो होप्स एंड ड्रीम्स थे दे केम क्रैशिंग डाउन। I thought this is my final year of college, थर्ड ईयर था BSc का। तो मैंने सोचा अच्छा भाई ये जीत वीत के आएंगे, उसके बाद पता चलता है हम हार के आ रहे हैं। हम थर्ड आ गए, ब्रॉन्ज आ गया, बहुत दुख हुआ था। ये ब्रॉन्ज मेडल मिला था, बहुत इतना काला है दिखता भी नहीं है कुछ क्या लिखा है। तो ऐसा ही काला मुझे अपना पूरा फ्यूचर दिख रहा था कि हार के आ गए, क्या किया भाई। तो हाँ, काफ़ी डिप्रेस फील हुआ। इसको फिर मैंने अपने टेबल पे लगा के रखा था पूरे 1 साल, इससे रिमाइंड किया था खुद को कि क्या करना है। यू हैव टू रिडीम योर सेल्फ, यू हैव टू लाइक पुल योर सेल्फ टुगेदर, यू आर अ विनर, यू हैव टू प्रूव टू एवरीवन दैट यू कैन विन, काव्या सिंह इज अ विनर। सो आई डिड दैट, एंड दिस इज द ईयर दैट माई लाइफ चेंज्ड, द नेक्स्ट ईयर। बट दिस ईयर जब मैं ब्रॉन्ज जीती, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हिल गया। आई वॉज लाइक क्योंकि फिर वही चीज़, व्हेन यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू समथिंग, you don't feel like there is ever a possibility of losing. You have that childlike innocence inside you that you feel like नहीं जो होगा अच्छा ही होगा, we'll win only, हम तो हार ही नहीं सकते, and when you lose, like it hurts a lot. So that is what happened. It hurt a lot, and itna zyada that I lost sleep. Like I became completely depressed, and it might sound very stupid to say it out loud कि यार एक competition ही तो है, एक debate ही तो है, why are you geeking about it so much कि तुम अपनी रातों की नींद खराब कर दे रहे हो, या फिर तुम इतना ज़्यादा उससे obsessed हो जा रहे हो that you are leaving your friends behind, you're leaving your life behind. Like what's this craziness all about? I can't explain it to people, but why are people obsessed with cricket? Why are people obsessed with reading? Why are people obsessed with, I don't know, cooking? Why do people defend their favorite IPL teams? Like people do that, right? So there's definitely things that people care about, and this is what I cared about, like evidently, right? So it hurt me a lot, and I was like,
how can I lose even after putting so much effort? Like, it's not fair. But then again, life में वही होता है ना यार. It doesn't matter if you are putting effort or not. Like, everything is not fair. Everything is not promised to you. Nothing is guaranteed. So you just have to like accept it. कि ठीक है भाई. Like, it's fine. I just have to live with it. And that is what I had to do, but I worked really hard for the next 1 year. After coming back from the nationals, जो कि हमारा पंजाब में था, हम वापस आए. उसके बाद 1 महीने बाद AIU का विमेंस यूनिवर्सिटी हो रहा था, पारुल यूनिवर्सिटी गुजरात में. तो हम फिर गुजरात गए एंड वहाँ पे आई गॉट अ चांस टू रिडीम माई सेल्फ. Won first prize. Your girl Kavya Singh won first prize, and I was on fire there. Like, I was completely on fire. God, these trophies are heavy, man. Best speaker. So I won gold medal in this competition again. Like, I did not think that I could win, but I did, and I like swept all the categories. And that is why I said, am I the Michael Phelps of Youth Fests? Because everywhere I went, I swept all the categories. I got the best, overall champion. I got the best speaker. I got everything. If I'm being honest, there was no one else who cared as much about these competitions as I did, so maybe that's why. The next year, I set my eyes on something bigger. So I said, what's bigger than all of this? What's bigger, So this year जिस साल की मैं बात कर रही हूँ, तो अभी भी मैं वो रिडेम्पशन वाले मोड में हूँ कि ठीक है, मैं ब्रॉन्ज मिला है मुझे, मैं एक तरह से हारी हूँ और अब मुझे विमेंस पार्लियामेंट में जीत मिली है. तो मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा है कि ठीक है, तुम कर सकती हो काव्या, बट सबसे बड़े लेवल पे अभी भी हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं. तो उस वजह से हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है. बट आई एम ऑल्सो aspiring for more now, so I am aspiring for National Youth Parliament, जो कि सबसे प्रेस्टिजियस कंपटीशन है इन पब्लिक स्पीकिंग इन इंडिया, ठीक है. ये ऑर्गेनाइज करता है आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, और ये होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में. तो आपने देखा होगा ये कुछ वायरल क्लिप्स होती हैं ऑफ लाइक प्रोमिनेंट यूथ स्पीकर्स जो कि इतने बड़े लेवल पे बोल रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं. इट्स नॉट जस्ट थिंग्स यू से टू विन, इट्स ऑल्सो थिंग्स दैट मेक पीपल रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन सोसाइटी. सो आई वाज लाइक, वाओ, दिस looks like fun, this looks like something prestigious, so I want to level up now. That is where I wanted to go next. तो मैं ना, एक पोर्टल है माई भारत पोर्टल, तो ये पोर्टल में मैंने लॉग इन किया, साइन अप किया, और उसमें मैं रेगुलरली चेक करती रहती थी कि कब आएगा, कब अपडेट होगा, कब ये सारी चीज़ें होंगी. तो मुझे पार्ट लेना था उस साल, 2024 की बात है, 2024 में. तो आई वाज लाइक, यार मुझे इतना तो बोलने आता है कि मैं स्टेट लेवल पे तो कम से कम कुछ कर लूँगी, ठीक है. नेशनल्स का मुझे नहीं पता. हाँ, तो मैंने लॉग इन किया, तो उसमें जो है बहुत सी इन्फॉर्मेशन आती रहती थी और उसके बाद मैं देखती रहती थी. फिर एक दिन आता है, गेट अ चांस टू मीट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. How did I end up meeting the Honorable Prime Minister? That I will tell you in the next video. So if you like this video, give me a thumbs up, share it with friends that want to learn more about Unifest. If you're participating this year, tell me about your hopes and dreams. Just let me know what other things you would want to hear about. So yeah, this was my experience, and I just wanted to show you the kind of things I've collected, the kind of things that represent my college life, and things that honestly I'm very proud of. But more so, I wanted to show it to you because I want you to like now visualize what you want, and if this is something that you want, then you can visualize better and manifest it sooner. So yeah, I hope you enjoyed this video. I am very excited about the next video, which is very close to my heart, how I met Prime Minister Modi ji, how I had lunch with him, and obviously how I just entered this level of life, like just doing things that I never planned of doing. So yeah, stay tuned. Till then, take care. Bye bye.